ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। Praise the Lord, 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 praise the Lord। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਔਰ ਅੰਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਚੁਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ। ਜੀ, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे शू, पाक रूहे गया मुझे शू। ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे शू, पाक रूहे गया मुझे शू। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, सब ले गया है तू, पाक रूहे गया मुझे शू, पाक रूहे गया मुझे शू। ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे शू, पाक रूहे गया मुझे शू। तेरी हमदो गा रहा, तेरी हमदो गा रहा, जर्रा जर्रा मेरा लूं लूं, पाक रूहे गया मुझे शू, पाक रूहे गया मुझे शू। ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे शू, पाक रूहे गया मुझे शू।
टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन। पाप धो गया जो लहू, पाक रूहे गया मुझे यीशु, पाक रूहे गया मुझे यीशु। ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे यीशु, पाक रूहे गया मुझे यीशु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, थैंक यू। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਅਸਵੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਡਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦੇ ਕੇ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ, ਦੇ ਕੇ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ। ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਏ ਹੋਏ ਖੁਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਏ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਏ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ, ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ,
ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਜ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿ ਖੁਦਾਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚ, ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਚ, ਹਨਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਹਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord. तू आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तू आके मेरी जान। कदी भी ना भुल बख्शिशां ओदियां नू, कदी भी ना भुल बख्शिशां ओदियां नू, तो के मेरी जान मुबारक खुदा है, तो के मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान। तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तू आके मेरी जान। तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है, तू आके मेरी जान। तेनू चंगियां चीज़ां ना ओ रजांदा, तेनू चंगियां चीज़ां ना ओ रजांदा, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है, तू आके मेरी जान।
ਉਕਾ ਬਾਂਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਕਾ ਬਾਂਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ नया है, तू आँख मेरी जान। हाँ सब दुखियां कंगाला दे लैया पी, ओ हाँ सब दुखियां कंगाला दे लैया पी, नया नाल सच्चे आई करदा खुदा है, नया नाल सच्चे आई करदा खुदा है, तू आके मेरी जान। विखाया है राह अपना मूसा नू उसने, विखाया है राह अपना मूसा नू उसने, बनी इसराइलियां दा ओ रहनुमा है, बनी इसराइलियां दा ओ रहनुमा है, तू आँखें मेरी जान, तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है, तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तेओ से दाही ना पवित्र सदा है, तू आँखें मेरी जान। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, brother ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। Praise the Lord। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ तेरा शुक्र कर दे खुदावन खुदा, तेरी हजूरी ले मेरे प्यारे पिता, तेरे मसे ले खुदावन खुदा, मैं तेरा शुक्र कर दी हूं खुदावन खुदा। और मैं बाजी मेरे प्यारे पिता तेरे ही हत्थां दे विच सौंप दी हूं खुदावन खुदा। तू आप दी बेटी दे खुदावन खुदा, आप दी दासी दे खुदावन खुदा, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਭੇਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਚਨ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਛੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जी प्रेज द लॉर्ड। Praise the खुदावंद आपको बरकत दे अंजना। खुदावंद इसी तरह आपको अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे और आप इसी तरह हर वक्त तैयार रहें। गॉड ब्लेस यू। और प्रस्तिश के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद ने
अपने बच्चों को, उनकी आवाज़ों को, गलों को इस्तेमाल किया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का मज़ा हमेशा आपके ऊपर ठहरा रहे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हम 23 चैप्टर तशना जो है वो ही पढ़ेंगे। मेरा ख्याल आज तीसरा दिन हो गया शायद, है ना? तो रोज़ मैं सोचती हूँ आज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ी हम बात करते हैं और रह ही जाती है। तो क्योंकि इसमें ना तकरीबन हर आयत ही है जिस पे यानी मेरा जैसे कह लें दिल करता है कि कुछ ना कुछ हम ज़रूर बोलें, है ना? तो इस वजह से थोड़ा टाइम जो है वो लग रहा है ना? तो हमारे साथ में है रीडिंग में रविंदर हैं और निदा आज नहीं आई, तो उर्दू में हमारे साथ कोई अगर रीड कर सकता है। बाइबल रीडिंग में जी मेरी आज ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह। ओह अच्छा, ठीक है, चलो जी। समीना उर्दू में करेंगी? हाँ प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बाजी मेरा मैं पढ़ हाँ ओके जी ओके ठीक है, 15 आयत से हम पढ़ेंगे 25 आयत तक। चल जी ओके प्रेज द लॉर्ड। ਫੁਟਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਾਂਡੂ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕੱਜਰੀ ਦੀ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਸੁਖਣਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਨਾ ਅੰਨ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਪਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਸੁੱਕੇ ਉਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਸੁੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਰ ਖਾਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵਾਈ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜੀ, ਪਰ ਦਾਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਖੜੀ ਲਾਈ। ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अंजना जी। समीना हाँ जी, कौन सा कृष्णा? तशना, हाँ 23 बाब उसकी 15 आयत से आखिर तक पढ़ेंगे। राइट। तेईस बाप उसका 15। अगर किसी का गुलाम अपने आका के पास से भाग कर तेरे पास पनाह ले तो तू उसे उसके आका के हवाले ना कर देना, बल्कि वो तेरे साथ तेरे ही दरमियान तेरी बस्तियों में से जो उसे अच्छी लगे उसे चुनकर उसी जगह रहे। सो तू उसे हरगिज ना सताना। इसराइली लड़कियों में कोई फाशा ना हो, ना इसराइली लड़कों में कोई मुफ्ती हो। तो किसी फाशा की खर्ची या कुत्ते की उजरत किसी मिन्नत के लिए खुदावंद अपने खुदा के घर में ना लाना, क्योंकि ये दोनों खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मुकरू हैं। तू अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, हुआ वो रुपये का सूद हो या अनाज का सूद हो या किसी ऐसी चीज़ का सूद हो जो ब्याज पर दी जाया करती है। तू परदेसी को सूद पर कर्ज दे तो दे, पर अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, ताकि खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिस पर तू कब्जा करने जा रहा है तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत दे। जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातर मन्नत माने तो उसकी पूरी करने में देर ना करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तो गुनाहगार ठहरेगा।
लेकिन अगर तू मिन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तू खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो उसके मुताबिक रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जबान से हुआ गुजरना। जब तू अपने साय के पाकिस्तान में जाए तो जितने अंगूर चाहे पेट भर कर खाना, पर कुछ अपने बर्तन में ना रख लेना। जब तू अपने मसाए के खड़े खेत में जाए तो अपने हाथ से बालें तोड़ सकता है, पर अपने मसाए के खड़े खेत को हंसवान ना लगाना। आमीन। आमीन जी। गॉड ब्लेस यू समीना। खुदावंद का मसा आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहे। खुदावंद अपने परों में छुपा के रखे आपको, अंजना को, और खुदावंद के नाम को आप इसी तरह अपनी जिंदगियों से, अपने बदनों से जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू। हमने कल इस पे बात की, जो कलम सारा ही चैप्टर बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी थी जो 14 आयत है, जिसमें हमने सीखा था कि यानी 13 और 14 आयत, जिसमें हमने सीखा था कि अगर आप जैसे यानी हमारे घरों में हमने एक अलग जगह बनाई हुई, जहाँ यानी बाथरूम, वहां पे जाते हैं, पॉटी करते हैं, है ना, तो वहां पे तब जगह वो ऐसे तब नहीं थे कि बाथरूम होते थे, है ना, लेकिन खुदावंद ने फिर भी देखे अपने लोगों को सिखाया कि तू एक जगह जो है वो रख, और वहां पे क्या करना, जब फारिग हो जाओ तो मट्टी खोद के, यानी गड्ढा खोद के उसको दबा देना, ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना, है ना, ताकि खुदावंद जो है, ये जो 14 आयत है ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि खुदावंद जो है तुम्हारे खैमों में फिरता है, ताकि क्या करे, तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे, सो तेरे खैमा गाह पाक रहे, है ना। ये आयत जो थी ये जैसे कह लें मेरे दिल को बड़ी टच की कि खुदावंद हमारे घरों में आता है। समीना की मुझे बात याद है, ये कुछ अर्सा पहले, शायद पिछले साल, इसने कहा कि मैं अपना दरवाजा बड़े ईमान से जाके खोलती हूँ और कहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आ, है ना, और सारे घर के, तो बिल्कुल वाकई ही खुदावंद जो है हमारे अ, घरों में आता है, वो फिरता है। इस साइड से देखें, यानी कोई हम ख्याली पुलाव नहीं बना रहे, खुदावंद खुद हमें बता रहा है, और इस बात को जरूर याद रखें। हम कभी खुदावंद ने मौका दिया तो मैं इस पे बात हम करेंगे, थोड़ी स्टडी सीखेंगे कि खुदावंद क्या था उस वक्त इसराइलियों के दरमियान रहा करता था, ये याद रखें। खुदावंद उस मेरे हलगिनती की किताब में भी खुदावंद ने क्या कहा था, मैं इस मुल्क में रहता हूँ, और यहाँ पे भी इस आयत में खुदावंद अ, यानी अपने लोगों से बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे खैमागाह में फिरता हूँ, ताकि क्या, तुझको बचाऊं तेरे दुश्मनों से, और तेरी खैमागाह जो है वो पाक होनी चाहिए। खुदावंद फिरता है, खुदावंद हमारे घरों में रहता है या हमारे दिलों में रहता है, यानी ये दोनों तरह हमें यानी पाक जो है वो होना जरूरी है ना। तो इसलिए ये आयत जो है, यानी जिस्मानी तौर पे भी हम ले सकते हैं कि हमारे जो घर हैं वो भी साफ हों, कहीं ये ना हो कि खुदावंद गंदगी को, बेतरतीबी को देखे और यहाँ पे देखे लिखा हुआ कि वो फिर जाए, यानी वो वापस चला जाए, है ना। तो इसी तरह बिल्कुल हमारे दिल भी अगर गंदे होंगे तो खुदावंद जो है वो फिर जाएगा। ये हमने कल थोड़ी सी इस पे बात की थी, तो जरूर एक तो ये याद रखें, जैसे क्योंकि खुदावंद को हमने देखा नहीं है, हम इमेजिन करते हैं, यानी अपने ख्याल में, दिल में या सोचते हैं कि खुदावंद जो है हमारे इर्द गिर्द है, खुदावंद जो है वो हमारे घरों में आता है। तो इसलिए ये जरूर याद रखा करें, जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो दिल में रखा करें कि खुदावंद यहाँ पे फिर रहा है। मैं आपको अपने भी एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि कई दफ़ा होता है कि जब आपको बताया कि 3 बजे मैं उठती हूँ, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेरी आँख नहीं खुलती, क्योंकि मैंने कोई अलार्म या कुछ खुद ब खुद ही खुल जाती है।
आंख, लेकिन एक दो दफा ऐसे हुआ कि मेरी आंख नहीं खुली, तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने टच किया है, जैसे बड़े, जैसे अब मैं कह सकती हूँ प्यार से, जैसे मेरी खुद अपने बच्चों को उठाने की जो आदत है ना, वो मैं कभी शोर नहीं डालती, बड़े मैं प्यार से जाके उनके मुंह पे ऐसे थोड़ा अपना हाथ फेरती हूँ और या सर पे, तो मैं उनको इस तरह उठाती हूँ। मुझे बिल्कुल इस तरह 2-3 दफा ऐसा हुआ कि खुदावंद ने आके मुझे टच किया, तो मुझे जाग आ गई। मैंने कहा ओह टाइम हो गया, मैं उठी नहीं। तो खुदावंद आता है। अब कुछ भी कर रहे हैं तो यही एक जैसे कह लें एक तसल्ली देता है, और एक हमारे अंदर एक जो एक खौफ की जो रूह है वो भी इसी तरह काम करती है। हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें पता हो कि खुदावंद जो है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या कर रही हूँ तो खुदावंद देख रहा है, खुदावंद यहाँ पे मौजूद है ना? तो इसलिए ये भी ज़रूर दोनों तरह से हम सीख सकते हैं या याद रख सकते हैं कि अगर अच्छा कर रहे हैं तब भी खुदावंद देख रहा है। प्रस्तिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो खुदावंद क्या है यहाँ पे उस वक़्त तख्त लगा के बैठा होता है हमारे। गीत गा रहे हैं, है ना? या दुआ कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ बुरा कर रहे हैं, तो तब भी खुदावंद देख रहा है हमें, है ना? तो ये ज़रूर एक हमें याद होना चाहिए। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी आयत। मेरा ईमान है कि आप सबको भी ये आयत जो है बड़ी दिल को लगी। हम कोशिश करते हैं कि अपने दिल को साफ रखें, हम उस तरह से अभी कर नहीं सकते, लेकिन मेरा सब ये जैसे कह लें ज़ोर दे के बताने का ये मकसद होता है, क्योंकि हम मेरी कह लें खुदा ने ड्यूटी लगाई है। मैं शरीयत की किताब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें क्या था, खुदावंद जो है एक किस्म का सब कानून जो है वो सिखा रहा था, बता रहा था अपने लोगों को, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हम उसमें से गंदगी में से निकलेंगे कैसे। तो कह लें मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने वो सारी गंदी बातें जो है वो आपको बतानी है, या एक डर और खौफ को जो खुदावंद का जो एक कह लें पाक खौफ है ना? वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो कह लें खुदावंद ने एक मुझे जो है काम दिया है। तो नए अहदनामा जो है वो फ़ज़ल का दौर है। उसमें क्या है कि हम माफ़ी माँगते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून को लगाते हैं, तो हम पाक साफ़ हो जाते हैं। लेकिन पहले हमें पता तो हो कि क्या हम गलत कर रहे हैं, है ना? तो कह लें मेरा वो काम है कि सारे जो दाग धब्बे लगे हुए हैं हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे दिलों में हैं, गंद, वो एक-एक करके जैसे-जैसे खुदावंद यानी देखिए मैं कोई खुद से नहीं, कुछ हम चैप्टर पढ़ते हैं और उसमें खुदावंद मेरे साथ भी और आपके साथ भी बात कर रहा है ना? तो अगर किसी को कुछ बुरा लगे कि शायद बाजी सानू ला-ला के गल्लां कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने पढ़ा जाता है और फिर उस हिसाब से हम बातचीत करते हैं, है ना? तो खुदावंद हमें सिखा रहा है, हमें, क्योंकि दुल्हन की मानिंद हम तैयार हो रहे हैं, तो खुदावंद नहीं चाहता कि कहीं पे भी हमारे कोई छोटा-सा अ, जैसे अब हम दुनियावी तौर पे भी माँ-बाप हैं, आपने कभी देखा हो बच्चे ने पॉटी की है या कह लें बाहर उसमें से मट्टी में खेल के आया और सारा गंदा है। आप उसको प्यार करते हैं, आप उसको ज़रूर अपने बाजुओं में लेंगे और जैसे कह लें प्यार करेंगे। लेकिन आपने फ़र्ज़ करें आपका बेड है या सोफ़ा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हाइट चादर बिछाई है, बड़ी सफाई की हुई है। तो आप कभी भी उस बच्चे को, बेशक आप उसको प्यार करते हैं, बेशक आप उसको अपने कह लें बाजुओं में ले लेंगे, हाथों में पकड़ लेंगे, है ना? लेकिन आप उस बेड पे या उस सोफ़े पे जाके नहीं बिठाएँगे। आप क्या करेंगे, पहले उसको लेके जाएँगे, उसको नहलाएँगे, उसके कपड़े चेंज करेंगे, है ना? तो फिर उस बेड पे या उस सोफ़े पे आप ला के बिठाएँगे, है ना? कभी भी गंदे को उठा के नहीं। तो इसी तरह बिल्कुल हमारा जो आसमानी बाप है, वो भी हमें प्यार करता है। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता या वो हमें हकीर नहीं जानता। वो जैसे ये नहीं कहेगा चल, चल तू भाग जा, तू बहुत गंदा है ना? तू घर में ना घुस। नहीं, वो हमें अपने बाजुओं में लेगा, प्यार करेगा, लेकिन वो साथ ही क्या करेगा, हमें नहलाएगा, कपड़े बदलेगा, है ना? जिस तरह हम मुसरफ बेटे का भी ये देखते हैं कि बाप ने क्या किया, बढ़कर उसको बाजुओं में ले लिया, है ना? अपने बेटे को। लेकिन पहले उसने क्या किया, उसकी सारी सफाई की, है ना?
तो बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो बीच में दीवार थी दुश्मनी की हमारे और बाप के दरमियान में, वो हटा दी है। वो पर्दा जो था वो कह लें हैकल का जो था अ, वो नीचे से ऊपर तक फट गया था। यानी अब हम उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन गंदे ही नहीं जा सकते, है ना? ये तो जिस्मानी तौर पे भी आप सोचें कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि खुदावंद ने हमें इजाज़त दे दी है कि जो कह लें गैर कौमें हैं, हम उसमें से आए हैं, लेकिन खुदावंद गंदा ही उधर नहीं ले जाएगा। खुदावंद ये चाहता है कि जिस तरह वो काहिन जो था, वो महान पुजारी जो था, हाई प्रीस्ट जो था वो तैयार होता था, पूरा साल तैयारी करता था, फिर उस पाक-तरीन मकाम में जा सकता था। तो बिल्कुल उसी तरह खुदावंद हमें भी उसने ये खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से उस जगह तक हम खुदावंद ने हमें कॉलिंग या हमारी बुलाहट जो है वो ये है कि वहाँ आओ, मेरे साथ तख्त पे बैठो, है ना? बाप के खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। लेकिन अब वो ये चाहता है अगर हम जो नया ऐहदनामा भी अंजीलें पढ़ें और शागिर्दों की जो तालीम है, तो उसमें भी हमें सारा कुछ सिखाया है। ये जो शरीयत हम पढ़ रहे हैं, समझे यही बातें जो हैं वहाँ पे रिपीट हो रही हैं, वहाँ पे हमें खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी यही बता रहे हैं, पाक बनो जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो इसलिए शरीयत हमें ये बता रही है, यानी ये जो तोरा की किताब है, कि ये बातें हमें अंदर से निकालनी है। ठीक है? तो इसलिए अगर किसी को पता ही नहीं है तो वो कैसे उसको अंदर से निकालेगा? उसको पता ही नहीं है कि झूठ न बोलना बुरी बात है, फ़र्ज़ करें, है ना? या बदगोइयाँ करनी ये बुरी बात है, ये खुदा उनको पसंद नहीं है, या नफ़रत करना, है ना? तो इसलिए शरीयत हमें ये बताती है कि ये गुनाह है, ये गंदी बातें हैं, खुदावंद को इनसे नफ़रत है, ये अपने अंदर से निकालो, है ना? तो इसलिए ये आजकल हम जैसे कह लें वो सीख रहे हैं कि हमें ये अपने अंदर में से निकालना है, अपने दिलों को, अपने ज़हनों को पाक साफ करना है और बदनों को भी, है ना? रूह, बदन और जान हमारी पाक साफ होनी चाहिए। इसलिए जैसे कल हमने थोड़ा सीखा कि खुदाम का कलाम क्या है, वो हमें गुस्ल भी देता है, यानी नहलाता भी है, यानी हमारी गंदगी जो है, उसके ज़रिए भी पाक साफ होती है, ठीक है? तो 15 आयत में हम देख रहे हैं कि अगर किसी का गुलाम अपने आका के पास से भागकर तेरे पास पनाह ले, तो तू उसे उसके आका के हवाले ना कर देना, है ना? तो ये भी हम दोनों तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई है मदद के लिए आपके पास आया है, तो हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए, जो कि खुदा यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है। कि अगर कोई अ, जैसे कह लें मदद के लिए आपसे कुर्ता माँगे तो उसको क्या है वो भी दे दे, है ना? इस तरह। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया कि हमें हेल्प करनी है। ये जिस्मानी तौर पे भी है, किसी को जैसे कह लें पैसों की ज़रूरत है या किसी भी तरीके से, तो हमें जो है उसकी मदद करनी है। लेकिन अगर हम इसको जैसे कह लें रूहानी तौर पे भी देखें कि हम भी क्या थे? गुलाम थे। किसके गुलाम थे? शैतान के, इब्लीस के, उसके गुलाम थे। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? कीमत दे के खरीद लिया है ना? तो इसलिए ये भी गुलामी है या फिर किसी आदत के हम गुलाम होते हैं, कैदी होते हैं। ये भी हमने सीखा कि रूहानी तौर पे। तो अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, फ़र्ज़ करें गैर कौमों में से आता है, तो वो आपके पास जैसे कह लें मदद के लिए आता है कि मैं परेशान हूँ, दुःख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तो हम दुआओं के ज़रिए उसकी मदद कर सकते हैं और इस फ़ेथ में भी लेके आ सकते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह के। तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं या कोई बुरी इल्लत में, आदत में फँसा हुआ है, हो सकता है नशे में है या झूठ बोलने की है, इस तरह की उसमें फँसा हुआ है, तो हमारा क्या काम है उसको हम हकीर ना जानें, उसकी हम मदद करें, दुआओं के ज़रिए भी और उसको यानी अपने अगर उसको इस तरह की हेल्प की जिस्मानी जो ज़रूरत है, वो भी पूरा करने की कोशिश करें हम। क्योंकि खुदावंद बाप ने भी शरीयत में भी यही हमें सिखाया और खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें ये सिखाया कि हम दूसरों को
जो भी उसको मदद की ज़रूरत हो हम उसको उसकी ज़रूरत को पूरा करें, बल्कि उसको अपने पास क्या फ़र्ज़ करें, अपने जैसे हम फ़ेथ में लेके आते हैं तो उसको पूरी तरह दुआओं के ज़रिए उसकी जो मदद है वो करें, है ना? उसके लिए रोज़े रखें या जिस्मानी तौर पे भी जो भी ज़रूरत है उसकी कोशिश करें हम पूरा करने की। तो उसको हकीर ना जाने या उसको वापस ना भेज दें कि नहीं ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो जैसे कह लें कि अ, इस फ़ेथ में मैं इसको इतनी मुश्किल से लेके हूँ लेकिन ये फिर अभी पुराने तो ये कई दफ़ा होता है हम तंग आ जाते हैं या किसी बिलीवर के लिए भी हम काम कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें उसके साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए दुआएँ कर रहे होते हैं, तो उन उसकी ज़िंदगी में अभी जैसे कह लें गंदे काम जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। तो हम कई दफ़ा पीछे हट जाते हैं या कहते हैं कि हाँ, उसको ये तो तब्दील ही नहीं हो रहा। तो क्या हमने कभी अपने बारे में भी सोचा है कि हमें या इसराइलियों को ये देखें अभी तक कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन अभी तक क्या है कि उनमें वही आदतें हैं, वही बुराइयाँ जो हैं चल रही हैं, है ना? तो इसलिए हम भी अ, जैसे कह लें सब्र से आस रखें और उनकी ज़रूर मदद करते रहें। अ, यानी रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। फिर हम देख रहे हैं अ, कि इसराइलियों में कोई फ़ाहिशा ना हो और ना इसराइली लड़कों में कोई लूती हो। ये हम सबको ही पता है ना कि जो खुदावंद यानी हमें सिखा रहा है कि हमारी जो लड़कियाँ हैं या हम जो मसीही हैं या खुदावंद के जो लोग हैं, उनमें कोई भी ये वाला काम जो है वो ना करे। जैसे आपको पता है बाज़ारी औरतें, कस्बी इनको कहा जाता है या जो भी। तो ये हमारे एक जैसे कह लें फ़ेथ में हमारे इसमें मज़हब में कह लें ये नहीं होना चाहिए। खुदावंद ये कह रहा है कि ये हमारी जो लड़कियाँ हैं वो ना करें और लड़कों के बारे में कहा है कि कोई लूती ना हो। अगर आपको याद हो कि लूत जो था जिसके ये पीछे हमने देखा कि अम्मोनी और मोआबी इसकी औलाद थी लूत की। तो इसकी बेटियों ने क्या किया था अपने बाप के साथ ही हरामकारी की थी, है ना? तो उससे जो औलाद पैदा हुई तो देखें वो 10 पुश्तों तक खुदावंद की जमात में दाखिल नहीं हो सकी थी, है ना? तो इसलिए खुदावंद कह रहा है कि हमारी जो लड़कियां हैं मसीही जो हैं वो ये काम ना करें यानी बाजारी औरतों की तरह या जो कोठे पे होता है या है ना तो और हमारे लड़के जो हैं वो इस तरह के ना हो क्योंकि उसका क्या हुआ था उसने शराब पी हुई थी तो इस वजह से वो उसमें जैसा कह लें वो गलत काम या हरामकारी जो थी उससे वो औलाद पैदा हुई थी। तो इसीलिए खुदावंद जो है हमें जो है वो सिखा रहा है कि ना हमारी लड़कियां या ना काम करें और ना हमारे लड़के जो हैं वो इस तरह के बुराई में जो है वो फंसे, है ना? तो ज़रूर हम जिस्मानी तौर पे भी इस चीज़ का ख़्याल रखें और रूहानी तौर पे हमने सीखा था कि ये जो हम हरामकारी करते हैं यानी हम गैर मबूदों के पास जब जाते हैं तो वो भी इसी में शामिल हो जाता है, इसी कैटेगरी में कह लें जो गुनाह है। और फिर 18 जो आयत है उसमें हम उसी उसमें फिर यही बात हो रही है कि फ़ाहिशा की खर्ची या कुत्ते की उजरत या किसी मन्नत के लिए खुदावंद अपने खुदा के घर में ना लाना। हुँ, ये दोनों खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह हैं। ये कुत्ते पे हमने पहले भी बात की थी लेकिन चले दोबारा कुत्ते का बाइबल में काफ़ी दफ़ा ज़िक्र आया है। इसके 2-3 जैसे कह लें मतलब है। ये एक तो जो जानवर है, जो नापाक जानवर जो हमने पीछे सीखे थे, है ना? जानवरों के बारे में। एक तो ये नापाक है कि ये फाड़ने वाला है। ये क्योंकि मैं नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए उसकी जो ख़ामियाँ हैं, उसके बारे में बात कर रही हूँ। खूबियाँ भी उसमें हैं लेकिन हम अ, जो उसमें बुराइयाँ हैं उस करैक्टर पे हम बात करेंगे, है ना? तो ये फाड़ खाने वाला है, ये भौंकने वाला होता है ना? और
یہ نکل جانے والا ہوتا ہے، اور جو یہ ہے کہ یہ الٹی کر کے اپنی دوبارہ وہی الٹی جو ہے کھا لیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو شاید یاد ہو کہ جب خدا یسوع مسیح نے وہ ایک تمثیل دی سکھائی تھی ہمیں کہ لازرس اور امیر آدمی کی، کہ امیر آدمی کیا تھا وہ بہت امیر تھا، اور اس کے جیسے کہہ لیں گھر کے سامنے وہ جو لازر تھا جس کے زخم جو تھے وہ کتے چاٹتے تھے۔ تو اس کو اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں کہ وہ جیسے کہہ لیں خون چاٹنے والا، یا زخموں پہ وہ جیسے کہہ لیں کہ اس کو چاٹنے والا، اس کو کھانے والا، یہ بھی دکھایا گیا بائبل میں ہمیں، ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کے زخم جو تھے لازر کے، وہ کتے چاٹا کرتے تھے، ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مصری خدا تھا وہ کتے کے منہ والے تھا، جس کو یہ بہت مصریوں کا بہت بڑا کہہ لیں خدا جو تھا۔ آپ کو شاید سب کو پتہ ہی ہو کہ جو مصری ہیں ان کے خدا جو ہیں، پتہ نہیں کتنے خدا ہیں مجھے، لیکن ان کے نا جو خدا ہیں ان کی جیسے دھڑ جو ہے وہ انسان کا ہوتا تھا، اور منہ جو ہے وہ کسی پرندے کا، کسی کتے کا، کسی جانور کا جو ہے وہ ہوتا تھا، ہے نا۔ جیسے ہم وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کا منہ ہے اوپر اور نیچے انسانوں کا دھڑ ہے، تو اس طرح بہت سے ان کے خدا تھے۔ اور یہ جو خدا ہے جس کا کتے والا منہ ہوتا تھا اور نیچے انسان کی طرح، تو یہ مصر میں وہ بہت بڑا خدا ہوتا تھا۔ تو اس لیے بھی خدا نے کہا، اور ایک ہم حوالہ پڑھتے ہیں جس سے تھوڑا سا کہہ لیں ہم اس کی جو جیسے کہہ لیں کہ کریکٹر ہے۔ انجنا ہمارے ساتھ، سمینا ہاں جی، سمینا ادھر ہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، آپ نکالنا فلپیوں اس کا 2 باب یا 3 باب ہے میرا خیال ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ویسے تو اسی آیت میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ فلپیوں فلپیوں کی 3 باب 3 باب ہے میرا خیال ہے۔ سیکنڈ ورس۔ ہاں، ہاں جی، ہاں جی تھینک یو انجنا، ہاں جی پڑھے نا۔ بتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ ہاں جی، مقصود تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں دیکھیں کہ یعنی ایک تو کتوں سے کہا ہے، اور پھر ایک حوالہ اور بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں اس کو، لیکن میرا خیال ہے آپ سب کو یاد ہو کہ جب خدا یسوع مسیح کے لیے جو میں ہے وہ 22 زبور ہے، جس میں کہا ہے خدا یسوع مسیح کے لیے، آپ کو پتہ ہے نبوت ہوئی ہے کہ بہت سے کتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، بہت سے بدکاروں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، جب خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ نبوت ہوئی ہے نا۔ تو وہاں پہ بھی یہ دونوں کیٹیگری جو ہیں، یعنی بدکاروں کا اور کتوں کا ایک ہی اس میں کہا گیا۔ اور پھر ہم مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند نے صاف صاف کہا کہ کتے جو ہیں اور حرام کار جو ہیں، یہ آخری باب اس کا جو ہے 22 چیپٹر مکاشفہ کی کتاب، ریویلیشن کی کتاب، اس کے 22 چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والے اور گھڑنے والے باہر رہیں گے۔ اس لیے جیسے کہہ لیں کہ یہ اس پہ بات کرنا کہہ لیں کہ بہت ہی کہہ لیں کہ ضروری ہے، یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کے یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور کافی دفعہ یہ بات ہوئی ہے نا کتوں کی۔ اور پھر خدا یسوع مسیح، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جو عورت اپنے بیٹے کے لیے جب آتی ہے شفا کے لیے، ہے نا، تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ بیٹوں کا کھانا لے کے کتوں کو دینا روا نہیں ہے۔ تو اس لیے کافی جگہ کہہ لیں گے کتوں کی نیچر کی، یا کتے ان کا جو ذکر ہے وہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے نا۔ تو اس کہہ لیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں جیسا کہ پتہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس لیے میں نے تھوڑی سی آیتیں بھی
काफ़ी हैं, लेकिन तो ये जो हैं रूहानी तौर पे अगर हम देखें तो एक तो फ़ाहिशा तक तो आपको पता ही है ना कि ये जो हराम जैसे कह लें औरतें जो हैं, बाज़ारी औरतें हैं। गुजारिए। तो हाँ, और कुत्ते और यानी इनकी जो कोई अजर है, उजरत जो है यानी इनका कोई हिस्सा, जैसे अभी हमें मुकाशवा की किताब में क्या पढ़ा कि वो दाखिल नहीं हो सकते। खुदावंद की बादशाही में उनका कोई हिस्सा नहीं है। इस जो आयत है उससे हमें ये पता चलता है कि उनका हिस्सा जो है, जो कुत्ते की नेचर रखने वाले लोग हैं और जो हरामकार हैं, उनका खुदावंद की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है, वो बाहर रहेंगे। तो ये नेचर किस तरह की है? एक तो ये हमें पता चल रहा है कि बदकार हैं। बदकार मतलब जो सारी जिस एक किस्म की हम कह लें कि बुराइयाँ हैं, उनके अंदर पाई जाती हैं। बेशक वो ये एक और हवाला है जिसमें और ज़्यादा हमें वाज़ा जैसे कल पता चलता है कि जो 10 कवारियों का जब ज़िक्र होता है तो 5 कवारियाँ अंदर चली जाती हैं हुँ, और 5 कवारियाँ जो हैं वो बाहर ही रह जाती हैं। तो हुँ, वो भी दरवाज़ा खटखटाती हैं कि नहीं खुदावंद हमें अंदर आने दे, है ना? लेकिन हाँ, खुदावंद की अंदर से क्या आवाज़ आती है कि अब बदकारो मुझसे दूर हो जा, हुँ, है ना? हुँ, तो असल में ये कोई बाहर के लोग नहीं है, गैर कौमों की बात नहीं हो रही। ये हम जो मसीही ही हैं, उनकी बात हो रही है। उनका जो जैसे कह लें कि क्योंकि उनके भी क्या था, उनके भी जो मसले हैं, जो आपको पता है, वो पाक रूह को पेश करती हैं ना, और वो नबूवतें भी कर रही हैं, अगर वो वाला हवाला मुझे याद नहीं है कहाँ है। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैं कहता था तुमने नहीं किया। इसका मतलब है कि जो खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं करते, वो बाहर ही रहेंगे। बेशक वो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया, अपनी ज़िंदगी में ले लिया है ना? लेकिन वो अभी भी वैसी ही ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उस दिन क्या कहेगा कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और वो बाहर ही रहेंगे, वो रोएँगी, वो क्या ल लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना? हुँ, तो ये असल में कौन लोग हैं? तो अगर हम वो वाली आयत देखेंगे अ, मेरा ख़्याल है पतरस की उसमें है, ख़त में या याकूब के ख़त में है, जिसमें वो लिखा हुआ है कि जो कुत्ता है अपनी उल्टी जो है वो वापस काटते हैं। फिर से खा लेता है। तो ये वो हुँ, लोग हैं जो बैकस्लाइडर हैं, जो एक दफ़ा खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। हम खुदावंद के साथ वादा करते हैं, खुदावंद मैं फ़र्ज़ करें शराब नहीं पीऊँगा, थोड़ी देर बाद फिर से पीना शुरू कर देते हैं। या फिर झूठ जो है खुदावंद मैं नहीं बोलूँगा, बड़े वादे करने, बड़े खुदावंद के साथ मदद के लिए कहना और फिर से शुरू कर दिया वही काम। जो काम हम छोड़ते हैं, फिर से वही बदी वाले काम जो हैं वो हरामकारियाँ, वो ज़िनाकारियाँ, वो गुस्सा, वो नफ़रती काम जो हैं जिनसे खुदावंद को नफ़रत है। वो फिर से वो काम शुरू कर दे। ये वो लोग हैं, ये वो कैटेगरी है, ठीक है? इसलिए बताना ये कह लें कि बहुत ज़रूरी है, हम सबको पता हो, है ना? हुँ, फिर हम खुदावंद के सामने वादा करते हैं कि खुदावंद तू मुझे ले, तू मुझे पाक-साफ कर। हम गीतों में गाते हैं, मैं आई सरेंडर या मैं अपने आप को पेश करती हूँ, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूँ, है ना? कि अब मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ये गीतों में हम गाते हैं। हुँ, हुँ, इसलिए ज़रूर जो कुछ आप गीत भी गा रहे हैं, जो लफ्ज़ आपके मुँह से निकल रहा है, असल में आप क्या कर रहे हैं? खुदावंद के साथ एक किस्म का वादा कर रहे हैं। खुदावंद के साथ आप अम, जी, ओके, श्रेया थैंक यू। हाँ, ये अभी हम आयत पढ़ते हैं, ये ज़रूरी है ना? हुँ, मत्ती 7 चैप्टर 6 वर्स, है ना? तो हम खुदावंद के साथ बड़े वादे करते हैं, गीतों में वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, खुदावंद आज के बाद मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करूँगा, या जिस तरह ये मैं नवंबर-दिसंबर में शायद आपको याद हो, मैंने टेस्टिमनी दी थी कि मैंने वो गीत के ज़रिए अपने आप को पेश किया कि खुदावंद तू सौख़्त कुर्बानी के लिए बर्निंग ये जो
सैक्रिफाइस है, मैं अपने आप को पेश करती हूँ। तो फिर क्या हुआ, बीमारी आ गई मेरे जैसे कह लें ऐसे तकलीफ में से, दर्द में से गुजरना पड़ा मुझे, है ना। खुदावंद ने कहा हाँ अब ये बदन मेरा है। तो शैतान जो है हमें आजमाने के लिए आ जाता कि तू बड़ी गीता च गांधी पीस है कि हाँ जी ये मेरा नहीं हुन बदन हुन तेरा है ना। खुदावंद यीशु मसीह को मैं जैसे कह लें कि एक पेश कर रही थी और वादे कर रही थी कि खुदावंद अब मेरी इस बदन पे कोई मर्जी नहीं चलेगी, है ना, अब तेरी मर्जी चलेगी। और आप लोग भी जब गीत गाते हैं तो जब आप गीत जो बोल रहे होते हैं, असल में आप खुदावंद के साथ जैसे कह लें अहदो पैमान कर रहे होते हैं, वादे कर रहे होते हैं, है ना। तो ये आपने कर लिया, खुदावंद को कह दिया। अब खुदावंद ने तो आगे ही अगर महल आयत है जिस महल 21 आयत में है ना, कि जो कुछ आप मन्नत मांग लेते हैं या जो कुछ खुदावंद को आपने दे दिया एक दफा, खुदावंद वो फिर तलब करता है। खुदावंद चाहता है कि वो तो मेरा हो गया है। फर्ज करे अपना गला, आज वादा करती हूँ खुदावंद मैं आज के बाद गाने नहीं गाऊंगी, ये गला मैं तेरे लिए यूज करूंगी, है ना। उसके थोड़ी देर बाद ही मैं गाने भी गाना शुरू कर देती हूँ, है ना, मैं गालियां भी देना शुरू कर देती हूँ। तो वो क्या किया, हम अपने वादे से, हम अपनी बात से फिर गए, जो खुदावंद के साथ वादा किया था वो फिर गए। तो ये वो कैटेगरी है जैसे कुत्ता क्या करता है, अपनी उल्टी वापस खा लेता है ना। बिल्कुल उसी तरह हम क्या करते हैं, खुदावंद को दे दिया अपना बदन, खुदावंद को अपना गला दे दिया, फर्ज करें, है ना, कि नहीं ये तेरे लिए बस यूज होगा। जैसे आप कभी देखा ही होगा कि गॉस्पेल सिंगर यानी वो फिल्मी गाने या वो नहीं गाए, लेकिन वो लोग मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वाकई ही अपनी बात पे कायम भी रहते हैं, है ना। वो छोड़ देते हैं, वो फिल्मी जो गाने हैं घरों में पार्टियों में कह लें या और भी ऐसे अगर कोई उनको बुलाता है फर्ज करें, तो हो सकता है वो गाने भी गाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही लेकिन मैंने सुना है ऐसे, है ना। वो वादा करते हैं कि खुदावंद मेरी आवाज जो है वो सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो उस वादे से मुकर जाते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है, या मैं करती हूँ या आप कर रहे हैं, है ना। तो ये उन लोगों की बात हो रही है। ये बेशक फजल का दौर है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह का खून है, नाम है उसका, लेकिन जब तक जो हमने वादा किया हो खुदावंद को, जब तक जो हमने अपने आप को पेश किया हुआ था, वो माफी नहीं मांगते, यीशु के खून से अपने आप को धोते नहीं है, पाक साफ नहीं करते कि खुदावंद मैं तौबा करती, मुझे माफ कर, मैंने अपने बदन को पेश किया था लेकिन मैं उस पे कायम नहीं रह सकी। अ, तब तक ये क्या है, हम इस कैटेगरी के लोगों में शामिल हैं, जो बैकस्लाइडर है, जो खुदावंद को छोड़ के चले गए, है ना। तो यानी जो वादे किए, जो काम कहे थे खुदावंद से करने के लिए, वो हमने नहीं किए। तो इसलिए क्या होगा, अ, हम जो है पीछे चले जाते हैं, हम खुदावंद को छोड़ के फिर से अपनी दुनियावी कामों में मसरूफ हो गए, फिर से वही काम, वही गंदे बातें, वही जो जैसे कह लें खुदावंद को जिनसे नफरत है, वही काम हमने करना शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि हम उन बदकारों में शामिल हैं, जो कि क्या था जब जी सुरैया आप अगर पढ़ना ये जो मत्ती की ये वही चैप्टर है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो सुरैया। 29 साल कुत्तों वाली, हाँ जी 29 जरा साल पढ़ना बाद कुत्ते वाली ना। हाँ, जो 6 बाहर से रहेंगे। पाक हाँ जी 7 नहीं, हाँ जी, ये वो पढ़ना वाली है जरा। कि हाँ, ये वो वाली है कि अपने मोती कुत्तों के आगे ना डाल, और आप वही ना ओके ओके पाक चीजें कुत्तों को ना दो और ठीक है अपने ठीक है, मोती हाँ ये सुअरों भी के है, आगे ना डालो। ठीक है, ये भी उसी में आता है क्योंकि हम बेशक जैसे मैं अपना ही कहूँ कि मैं कलाम उनके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो वहीं पे उनकी जिंदगी जो है तब्दील नहीं हुई। सुरैया अगर मिले तो वो वाली आयत भी निकालना जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बदकारो मुझसे दूर हो जा, है ना, यानी जब दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है, यानी ये जो मुकाशवा की किताब में हम पढ़ रहे हैं कि वो क्या है, वो बाहर रहेंगे, जो बदकार हैं, जो बद किरदार हैं, जिनकी जिंदगी में क्या है, हम बेशक वादे करते हैं, बेशक खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम काम वही कर रहे हैं। एक दफा छोड़
एक दफा वादा करके फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं। या फर्ज करें, मैं अपना ही कहती हूँ कि मैंने मेकअप छोड़ दिया, मैंने कलर लगाना छोड़ दिया, है ना, मैंने ज्वेलरी पहना छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर से वही काम जो है करना शुरू हो जाऊं, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं उन जैसे कह लें बदकारों में शामिल हो गई। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ कहते हैं उसको पूरा करें। खुदावंद, क्योंकि वो जो एक किस्म का हम वादा कर लेते हैं ना खुदावंद के साथ, खुदावंद जो है वो तलब करता है फिर। वो जो चीज़ है, जैसे मन्नत, हम जैसे फ़र्ज़ करें पैसा हम कहते हैं, "ओह जी इतना मैं खुदावंद को दूँगा।" है ना? ये चंदा है या ये हदिया है या ये दै-यकी है ना? या टाइम है अपना। जैसे कह लें कि मैंने फ़र्ज़ करें, मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं 1 घंटा दुआ करूँगी, या रोज़े के लिए हम खुदावंद से वादा करते हैं कि नहीं, मैं हफ़्ते में 1 दिन रोज़ा रखूँगी और फिर नहीं रखती, है ना? या दुआ के लिए मैं 1 घंटा निकालूँगी, लेकिन मैं नहीं निकालती। तो इसका मतलब है कि हम इन लोगों में जैसे कह लें कि शामिल हो गए हैं, है ना? इस कैटेगरी में। आपने जो भी वादा किया है खुदावंद के साथ, जो भी खुदावंद के लिए छोड़ा है, उस उसको अब नहीं कर सके किसी भी वजह से, है ना? तो उसकी माफ़ी माँगे, क्योंकि वो गुनाह में शामिल हो गया है ना? ये आगे ही आयत 21 आयत में हमें जैसे मन्नत के बारे में, है ना? तो वो हम गुनाहगार ठहरे। जब तक उसकी माफ़ी नहीं माँगेंगे, तौबा नहीं करेंगे, वो गुनाह हमारे ऊपर लगा रहेगा, है ना? तो इसलिए आप गीत भी जब चूज़ करते हैं, मैं ख़ास क्योंकि इस पे कभी हमने गौर नहीं किया, जिसकी हमें ट्यून पसंद, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, है ना? जिसकी ट्यून पसंद है, जिसकी शायरी हमें पसंद आ रही है, हाँ, ये तो बड़ी बाइबल के हिसाब से लिखा हुआ गीत है, तो हम वो जी बड़े शौक से गाते हैं, या ज़बूर जो है हम गाते हैं। लेकिन आप उस लफ्ज़ों पे गौर करें, वो लफ्ज़ जो आपके मुँह से निकल रहे हैं, असल में खुदावंद के साथ अहद-ओ-पैमान हो रहे हैं, है ना? तो जब हम नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हमने अपना वादा जो था वो तोड़ दिया। हमने अपने आप को पेश किया और वो काम जो है नहीं कर झूठ बोलना, मैंने कहा था, "ओह खुदावंद, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगी कभी भी", है ना? तो हम फिर से झूठ बोलना शुरू हो जाए, या गुस्सा है, नहीं, नहीं, हम अपने बच्चों से कई दफ़ा होता है वादा करते हैं, नहीं, नहीं, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूँगी, या मैं तुझे नहीं मारूँगी, या है ना? तो हम फिर से वही काम शुरू कर दें। तो इसका मतलब है हम क्या है, खुदावंद की बादशाही से बाहर ही रहेंगे। खुदावंद की बादशाही में जो कुत्ते हैं, यानी कुत्ते की नेचर वाले लोग जो हैं, वो दाखिल नहीं होंगे। यानी जो बैकस्लाइडर हैं, जो खुदावंद के साथ पहले चलते हैं और फिर छोड़ देते हैं, है ना? वो दाखिल नहीं होंगे। जिस तरह हम कह लें कि इस्राएलियों के साथ भी देखते हैं, जब कोहे सीना पे खुदावंद जो था 10 हुक्म दे रहा था और उन्होंने क्या कहा था, आमीन। ये हमने सीखा था कि वो शोला जो था, जब 10 हुक्म खुदावंद लिख रहा था, तो एक शोला जो था हर इस्राएली के सामने आके खड़ा होता था कि हाँ जी, मैं ज़िना नहीं करूँगा। तो खुदावंद का वो शोला जो है वो जाके वो तख्ती जो थी, पत्थर की तख्तियों पे लिखा जाता था, है ना? उन्होंने क्या कहा, आमीन, यानी हम ये करेंगे खुदावंद, हम ये इसको पूरा करेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, आमीन का मतलब क्या है ना? यानी हम ये करेंगे खुदावंद, जो कुछ तू कह रहा है, या हम तेरे साथ हैं, जो कुछ भी तू हमें सिखा रहा है। तो एक किस्म का उन्होंने क्या किया, खुदावंद के साथ इकरार किया, वादा किया कि हम जो कुछ तू हमें हुक्म दे रहा है, हम इनको पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए क्या हुआ था, जो पुरानी नस्ल थी, जिन्होंने हाँ जी, क्या सुरैया? मिल गई आयत? सॉरी, हाँ जी, मत्ती 7 बाब दी पढ़ना है। हाँ जी। हाँ जी, उस वक्त पढ़ना। मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ, और जो कि मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। हाँ जी।
तो ये जो बदकार हैं, ये जो इस नेचर के लोग हैं, जिनके लिए क्या होगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना? तो इसलिए खुदावंद कभी ना करे कि हम में से कोई ऐसा हो। इसलिए ये बताना, उस पे जैसे कह लें अमल करना या माफ़ी माँगना, तौबा करना बहुत ज़रूरी है। तो खुदावंद कह लें कि ये सख्त जो रवैया है या जो कह लें सख्त अपने मुँह की बातें हैं, वो मेरे से आप तक पहुँचा रहा है। मुझे फ़ील भी होता है कि सारे कहेंगे बाजी बड़ी सख्त है। ऐसा नहीं है, लेकिन खुदावंद कह लें ये सख्त जो बातें हैं वो मेरे ज़रिए आप तक पहुँचा रहा है। और अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है। ठीक है? तो आप ज़रूर माफ़ी माँगे। अगर आपने इस तरह की कुछ रवैये जो हैं याद करके खुदावंद पाक रूह से हेल्प जो है माँगे, खुदावंद पाक रूह मुझे याद करा, मैंने क्या-क्या वादे किए थे। मैंने क्या-क्या कहा था कि मैं तेरे लिए करूँगा। या हो सकता है हमने किसी के साथ वादा किया हो कि नहीं-नहीं मैं तो खुदावंद के साथ इस तरह चलूँगा, इस तरह करूँगा, है ना? कई दफ़ा हमने डायरेक्ट खुदावंद के साथ वादा नहीं किया होता, लेकिन हम आपस में ही कई दफ़ा बातें कर रहे होते हैं, बहन-भाई जैसे कह लें या ऐसे ग्रुप में, है ना? तब भी क्या है, क्योंकि खुदावंद यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है, तो खुदावंद ने उस बात को जैसे कह लें सुना है। तो खुदावंद उस बात को हमसे चाहता है कि हम वो करें, है ना? ठीक है? तो इसलिए जहाँ कहीं भी आपके रवैये इस तरह के थे, आपने खुदावंद के साथ कुछ वादे किए हुए थे, अब खुदावंद के लिए कुछ छोड़ा है, जैसे मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ, है ना? तो ये आसानी से नहीं हो जाते, बड़ी जैसे कह लें बड़ी आज़माइश में से हमें गुज़रना पड़ता है। तो तब जाके हम जो है क्या कह लें कि इन वादों पे या इन जो हमने वादे किए होते हैं, उसके लिए आज़माइश में से गुज़रना पड़ता है। और जैसे कह लें मैं अपनी भी बात बताऊँ कि ये जैसे मैंने अपने बदन को पेश किया, है ना? तो उस उन दिनों शायद आपको याद हो कि कितनी बीमारी में से मुझे गुज़रना पड़ा, है ना? और मेकअप का भी मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि मेरे नंद की शादी थी, तो बड़ा जैसे कह लें हाई कह लें गैदरिंग थी वहाँ पे, तो मेरे लिए भी बड़ी आज़माइश थी कि शादी पे जाना था, कह लें बैंक्वेट हॉल में जी जाना है तो सब ग्रैंड आपको शादी पता है। हाँ? ग्रैंड शादी थी। ग्रैंड शादी थी। तो बहुत बड़ी आज़माइश थी, मैं रोती रही, खुदा खुदा तू मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मुझे इस बड़ी आज़माइश में ना डाल, लेकिन खुदावंद ने हुँ, कहा नहीं, तू वहाँ पे जाएगी और मेरे जलाल को दिखाएगी। और मुझे कह लें अ, खुदावंद ने ये नहीं होने दिया, है ना? तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल दिया कि मैं बगैर मेकअप के, बगैर ज्वेलरी के वहाँ पे गई। और मतलब कह लें कोई ऐसा किसी का खुदावंद ने क्योंकि मेरे साथ वादा किया, खुदावंद ने कहा कोई तेरे खिलाफ मुँह नहीं खोलेगा। तुझे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों तूने मेकअप नहीं किया? क्यों तूने ज्वेलरी नहीं पहनी? कोई तेरे से सवाल नहीं करेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं इतने हुँ, बड़े फंक्शन में गई, बगैर मेकअप के, बगैर ज्वेलरी हुँ, के, तो किसी ने मेरे से पूछा नहीं कि हाँ, ननी क्या हो गया? क्यों ऐसे तू आई है ना? किसी हुँ, ने नहीं पूछा, बल्कि जैसे कह लें मुझे हिम्मत देने के लिए, तक़वियत देने के लिए सब जो जिन्होंने देखी है तस्वीर या वैसे भी कि मैं कोई हुँ। ना इतनी प्यारी हूँ ना कुछ है। लेकिन जब नहीं, शुक्र है मैं खुदा का। जब हुँ, मैं गई तो 2-3 यानी जो लोग हैं जिन्होंने कहा मुझे कि तू बहुत प्यारी लग रही है। मैंने दिल में खुदावंद का शुक्र किया, मैंने कहा खुदावंद हुँ, कि जो तू वादा करता है उसको पूरा करता है ना? हुँ, तो ये नहीं मुझे पता कि वाक़ई मैं ठीक लग रही थी, लेकिन खुदावंद ने मुझे एक तसल्ली देने के लिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, खुदावंद मैं जब हॉल में एंटर ही हुई, तो मेरा ये भतीजा जो भांजा जो है समीना का बेटा हुँ, मुन्ना मुझे मिला और वो गले हुँ, लग के मम्मी यू लुक ब्यूटीफुल। मैं कहा हुँ, अच्छा। तो हम मतलब ये है बताने का कि आज़माइश जो है हमारे ऊपर आती है। ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो वो चुप करके सारा कुछ हो जाएगा।
آپ کو آزمائش جو ہے اس میں سے گزرنا پڑا. جس نے شراب چھوڑی ہے وہ بار بار ایسی پارٹیاں آپ کے سامنے آئیں گی, بار بار ایسے لوگ آئیں گے, چل کے تھوڑا سا پی لے, ایک گھونٹ لے لے, تو یہ آزمائش جو ہے ہمارے اوپر آئے گی. ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اس میں سے ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں دینا پڑتا, ہمیں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے نا. ہمیں خداوند یعنی مجھے جو لگتا ہے کہ شیطان کو دکھانا پڑتا ہے کہ نہیں, میں اب تیری نہیں ہوں, میں اپنے خدا کی ہوں, اب جو کچھ وہ مجھے کہے گا میں نے وہی کرنا ہے نا. تو یہ شیطان کو دکھانے کے لیے ہے, اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے شروع سے یہی جو ہے ایک جیسے کہہ لیں مجھے پسند ہے کہ میں اس کو دکھاؤں, میں اس کو جیسے کہہ لیں نیچا دکھاؤں کہ نہیں, میں اب تیری نہیں ہوں, میں میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, میں اپنے اب یسوع کی ہوں, اب جو وہ مجھے کہے گا میں وہ کروں گی. وہ میرا شوہر ہے, میرا یہ بدن جو ہے اس کا ہے نا. میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جو میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے نا. جو وہ مجھے کہے گا, جیسے 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 کہہ لیں مجھے پتا چلتا جاتا ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسے سمینا کی بھی یہ بات مجھے بڑی پسند ہے کہ جب اس کو پتا چلتا ہے وہ فوراً اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ہمیں سب کو ہی ہمارا یہ رویہ جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کلام کے بارے میں پتا چلا ہے آپ اس کو اپنی زندگیوں میں لیں, اپلائی کریں, ہے نا. تو تاکہ ہم اس کیٹیگری میں شامل نہ ہو جو بیک سلائڈر ہیں, جو خدا ان کے ساتھ ایک دفعہ چلنا شروع کرتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ اس طرح کا رویہ آتا ہے, جب ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں, وہ چلنا دوبارہ سے خدا ان کے ساتھ اسی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہے نا. لیکن کچھ جو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, ہے نا, تو اس لیے اور وہ معافی نہیں مانگتے, تو پھر کیا ہے, وہ گناہ جو ہے ہمارے ذمے جو ہے وہ لگا ہوا ہے, ہمارے اس میں پڑا ہے. جب تک خدا یسوع مسیح کے خون سے ہم دھوئیں گے نہیں, پاک صاف نہیں ہوں گے, تب تک ہم اسی کتے کی کیٹیگری میں شامل ہیں, یعنی جو بیک سلائڈر ہیں, ہے نا. تو اس لیے ان بدکاروں کی اس گروہ میں ہم شامل ہیں. تو اس لیے ضرور جہاں کہیں بھی ایسا ہوا ہے ہم معافی مانگے, توبہ کریں, تاکہ کیا ہے ہم آج پھر ٹائم ہو گیا اور ہم باقی کی آیتوں میں نہیں بات کر سکے, ہم پھر اس پہ بات کریں گے. تو ضرور ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر اپنے آپ کو آپ نے کسی بھی طرح سے اپنے جسم کو پیش کیا ہے, کیونکہ بہت سارے ہمارے جیسے کہہ لیں کہ گروپ میں بھی ہیں جنہوں نے اپنی آوازیں جو ہے اپنے گلوں کو کہہ لیں خدا ان کے, تو ضرور کوشش کریں کہ اگر اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو ضرور جو گانے ہیں ساتھ ساتھ وہ نہ گائیں, خداوند کے لیے گائیں. اپنے گلوں کے خوبصورت آپ کو خداوند نے آواز دی ہے تو خداوند کے لیے اس کو استعمال کریں, تاکہ کیا ہو, یہ جو گلا آپ کو دیا ہے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہو, ہے نا. تو کیونکہ آواز کس نے دی ہے, خداوند نے دی ہے, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں, میرا کوئی کمال نہیں کہ میں بڑا اچھا گاتی ہوں یا میری آواز اچھی ہے نا. تو یہ خداوند کا دیا ہوا ہے, اس میں ہمارا یہ گفٹ ہے نا, یہ ایک جیسے کہہ لیں توڑا ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہوا ہے. اس میں میرا یا آپ کا کوئی, یا میں جیسے کہہ لو خوبصورت ہوں یا کوئی ایسی کوئی بھی خوبی ہے, اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صرف ہمارے خداوند کا ہمارے اوپر رحم ہے, ترس ہے کہ خداوند جو ہے آپ کو اور مجھے استعمال کر رہا ہے نا. جس طرح ابھی شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ خداوند نے مجھے اتنے بچے دیے ہیں, روحانی بھی جسمانی بھی, تو خداوند نے مجھے ساتھ فضل دیا, مجھے یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں. خداوند نے سارے جیسے کہہ لیں ترتیب سے مجھے یوز ہی تب کرنا شروع کیا جب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں. تو اب میں یعنی جو میرے جسمانی بچے ہیں نا, تو اب میں اپنے روحانی بچوں کو جیسے کہہ لیں وہ ٹائم جو ہے وہ دے سکتی ہوں, ان کے لیے بھی دعاؤں میں ٹھہر سکتی ہوں, ان کے لیے یہ کر سکتی ہوں, ہے نا. تو خداوند نے جیسے کہہ لیں کہ سب کچھ بڑی ترتیب سے آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا. تو لیکن میں نے کیا تھا, اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ خداوند تو مجھے لے, جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح استعمال کر. تو اگر آپ کو کچھ خداوند نے توڑا دیا ہے,
आवाज़ों का या आप अच्छी दुआ करते हैं, तो इसमें कोई कमाल नहीं है। जैसे हमारी जो सरैया है, खुदावंद ने उसको दुआ का तोड़ा दिया हुआ है, तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। ये खुदावंद ने उसको चुना है हमारे जैसे कह लें ग्रुप के लिए कि वो दुआओं में हमें उठाती है, हमारे लिए शिफ़ायत करती है, हमारे लिए जंग करती है। तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। खुदावंद ने उसके लिए जैसे कह लें ऐसा मसा उसके ऊपर उंडेला हुआ है। तो उसके लिए प्रोफेसी भी हुई हुई है कि खुदावंद ने उसको दुआ का उसको तोड़ा दिया हुआ है या खुदावंद उसको इस्तेमाल कर रहा है ना? तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। आप कभी भी थैंक यू उसको ना बोलें, कभी भी उसकी तारीफ ना करें। ये हम क्या कहते हैं शैतान को जैसे कह लें कि मौका दे रहे हैं कि वो उसकी ज़िंदगी को जैसे कह लें आज़माइश लेके आए। उसमें एक हो सकता है फ़ख़्र आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसा। तो इसलिए ज़रूर जब भी फ़र्ज़ करें मैं मैसेज दे रही हूँ या और भी कोई, तो ज़रूर ये कहा करें कि आज खुदावंद का कलाम बड़ा अच्छा था। खुदावंद ने हमारे साथ ये बात की। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, इसलिए कभी भी मेरी तारीफ़ ना करें। कभी भी इस बंदे की कभी आपने जो गीत गा रहा होता है, कभी भी आपने मेरे अगर जैसे कह लें जो वो कमेंट हम लिखते हैं या उसकी, तो कभी भी नहीं आपने देखा होगा मैंने उस बंदे के साथ डायरेक्ट कभी बात नहीं की कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। उसको गॉड ब्लेस मी या ठीक है हम बोल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यानी खुदावंद को हम जलाल दे रहे हैं, उस बंदे को नहीं जलाल दे रहे, ठीक है? तो कोई भी कोई अच्छा प्रेज़ाइड कर रहा है या कुछ तो हम कोशिश करें, हम भूल जाते हैं मैं अपनी भी बात है ना कि हम उस बंदे की तारीफ़ लेकिन हम कहें कि आज बड़ा ब्लेसेड जो यानी प्रेज़ाइड है तूने किया, है ना? या आज तूने बड़ा गीत जो है वो अच्छा गाया, खुदावंद का मज़ा था। यानी हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। तो इस तरह ये क्या है कि जो ये बड़ी आज़माइश है हमारे ऊपर, जो हम आगे लीड कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर नहीं आती। नहीं तो क्या होता है, शैतान आता है और हमें आज़माइश में डाल देता है, यानी कि हमारे अंदर एक प्राउड आ जाता है। ओह! कि आज मैंने गाया था या आज मैंने प्रेज़ाइड किया था, तो बड़ा खुदावंद का मसा था या आज मैंने दुआ की तो ये बड़ा वो था, है ना? ये ना किया करें, कोशिश करें। तो हम भूल जाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करें कि उस बंदे की कभी तारीफ ना करें, खुदावंद की तारीफ किया करें, खुदावंद के नाम को जलाल दिया करें, है ना? तो हम बाकी की जो आयतें हैं फिर बात करेंगे। खुदावंद हम सबको फ़ज़ल दे, हम सभी कहीं न कहीं गलतियाँ कर रहे हैं, कहीं न कहीं खुदावंद को एक किस्म का कह लें नीचे लेके जाते हैं और अपने ही आप को जलाल देने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना? ये ठीक नहीं है। ये हमारे जैसे कह लें कि जो पास्टर हैं या हमारे वो ज़रूर हमारे पास्टर जब मैसेज देते हैं, कन्वेंशन है या कुछ भी है, कभी कोई बताता भी नहीं है कि आज किस पास्टर ने मैसेज देना है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी आके पुलपट पे खड़ा हो गया है, उसके अंदर से खुदा हमारे साथ बोल रहा है। वो कैसे भी बोल रहा है, कभी भी अ, वो ये नहीं देखते, चाहे कोई जैसे कह लें कि छोटा बच्चा ही यानी रूहानी तौर पे कह रही हूँ, तो वो भी आके बोलना शुरू हो जाए तो वो उसकी तरफ नहीं देख रहे होते क्योंकि उनको पता होता है इनके इसके अंदर से खुदा मेरे साथ और आपके साथ बात कर रहा है इसलिए कभी भी बंदे की जो तारीफ है वो नहीं होती हमारे जैसे कह लें यानी हमें सिखाया है ये नहीं मैं कह रही कि तो बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि खुदावंद जो है खुदावंद ही के नाम को जलाल मिले कभी भी उस पर्सन को उस शख्स को जलाल ना मिले, ठीक है? तो ये खुदावंद जो है, आज मेरे से और आपसे बात कर रहा है कि हम इस कुत्ते की नेचर वाले जो बदकार हैं उसकी तरह ना बने ताकि क्या हो, हम उस बादशाही में दाखिल हो सकें। क्योंकि क्या हमें मुकाशफा की किताब में मिलता है कि जो कुत्ते हैं, जो जादूगर हैं, जो बुत परस्त हैं, जो अ, खूनी हैं और जो झूठी बात का पसंद करने वाला और घड़ने वाला, ये जो हम अपने से ही कुछ बातें गढ़ लेते हैं ना बढ़ा-चढ़ा के जैसे पहले बताते हैं। इस तरह के लोग भी देखिए ये कलाम हमें बता रहा है मुकाशफा की किताब 22 चैप्टर और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है कि वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, ठीक है? तो ज़रूर कहीं पे भी आपके ऐसा कोई रवैया है या ऐसा कुछ हुआ है, तो माफ़ी माँगे, तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह का खून
हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा खुद यहाँ पे हमारे दरमियान तख्त लगाया हुआ है उसने, और खुदा यीशु मसीह का नाम है हमारे पास, खुदा का कलाम है, इतनी हेल्प है हमारे पास। हम तो कितने जैसे कह लें खुशकिस्मत लोग हैं कि खुदा ने इतनी हमें आसानियां जैसे कह लें मुहैया की हुई हैं, और फिर भी अगर हम ना करें, तौबा ना करें, माफी ना मांगे और खुदा उनके साथ ना चलें, खुदा उनके फरिश्ते भी यहाँ पे मौजूद है ना, तो सोचें कि कितनी हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बैक टू अंजना, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच ही ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਾਕਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੁਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ? ਸਨੀਆ ਸਿਸਟਰ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਨ? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord. खुदावंद की तारीफ, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, 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 thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, 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 Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तारीफ Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदाम दे धन्यवाद Lord Jesus. आज दिन बाद समय वास्ते खुदाम दे धन्यवाद Lord Jesus. Hallelujah. खुदाम जी सब इकट्ठे हैं कि खुदाम जी धन्यवाद Lord. Hallelujah. Lord Jesus तो अपनी हजूरी च खुदाम सानू मौका दिता खुदावन ते धन्यवाद करदे Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord Jesus, खुदावन तो सच में महान ते जिंदा खुदा Lord Jesus खुदावन तू सानू खुदावन चुन लिया Lord Jesus ते धन्यवाद करदे खुदावन दा परमेश्वर तू साडे लिए खुदावन पवित्र लहू बहाया खुदावन ते धन्यवाद करदे Lord. Hallelujah.
ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਤਾਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਗਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ थैंक यू जीसस खुदा ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਓ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਗੋਡ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ यस ਖੁਦਾ लॉर्ड ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਖੁਦਾ यस लॉर्ड जीसस Jesus, तू पाक खुदा मुझे पाक बना खुदा बना Lord Jesus से कुछ भी नहीं खुदा मुझसे डांस चाहो Lord Jesus खुदा बना पर तू जिंदा खुदा Lord Jesus से धन्यवाद 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 हालेलुया 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 और ये शुक्रिया का Thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Lord Jesus ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ in the name of Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ in the name of Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ yes Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਹੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਓ Lord Jesus ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਚੂ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ यस लॉर्ड जीसस खुदा तू ऐसा ही करना यस लॉर्ड ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਜੰਗ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਓ Lord Jesus ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ in the name of Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾ in the name of Jesus ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ यीशु के नाम से यस लॉर्ड God Jesus ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ in the name of Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ यीशु के नाम yes Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord Jesus ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦਾ Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ yes Lord yes Lord yes Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਸੀਨੇ ਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ in the name of Jesus oh Lord Jesus ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਟ ਦਿੰਦੀ in the name of Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ oh yes Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Sunde bora 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 zikri gara bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord Jesus, oh yes, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਪਾਕ ਦਾਗਨ ਕੋਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਚ ਉਠਾਏ ਚਾਹੀਏ Lord hallelujah. Oh yes, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ oh ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਚਨ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਹੈ ਲॉर्ड जीसस, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस खुदावंद तू ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ लॉर्ड जीसस हालेलुया, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ लॉर्ड जीसस, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ लॉर्ड जीसस हालेलुया। Oh yes Lord Jesus, खुदावंद आप हमेशा सारी महिमा खुदावंद तेरे यीशु नाम ਨੂੰ ਮਿਲੇ लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावंद ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ लॉर्ड जीसस, खुदावंद ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ लॉर्ड जीसस, खुदावंद तू ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ लॉर्ड जीसस, तू ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ खुदावंद लॉर्ड हालेलुया। Oh yes Lord Jesus, खुदावंद पिता परमेश्वर हालेलुया लॉर्ड जीसस, खुदावंद तू इस ग्रुप ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, खुदावंद तू इस ग्रुप ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, खुदावंद लॉर्ड जीसस ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ लॉर्ड हालेलुया। Oh thank you Jesus, खुदावंद जिन्हां ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ खुदावंद लॉर्ड जीसस ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ खुदावंद। Oh lord Jesus, खुदावंद ਤੂੰ ਜਿन्हां ਨੂੰ ਵੀ खुदावंद ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ लॉर्ड जीसस ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ खुदावंद। खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸੋ खुदावंद ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਏ लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड खुदावंद तेरी तारीफ होवे ते धन्यवाद होवे लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावंद इस ग्रुप च खुदावंद ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ खुदावंद, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ लॉर्ड जीसस खुदावंद हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस लॉर्ड खुदावंद परमेश्वर लॉर्ड जीसस हर एक चीज ਨੂੰ खुदावंद ਆਪਣੀ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ लॉर्ड जीसस। खुदावंद ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ लॉर्ड हालेलुया। Oh yes Lord खुदावंद पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस तू दिया कर लॉर्ड जीसस खुदावंद हालेलुया जीसस, तू साडी मदद कर लॉर्ड जीसस खुदावंद पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस ते वचन च लिखा कि तेरी मदद आसमानां तो होएगी, सिय्योन तो आवेगी। ओ यस लॉर्ड जीसस तू साडी मदद सिय्योन तो भेज खुदावंद। खुदावंद तू साडी रूह ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ खुदावंद हालेलुया। खुदावंद तू ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ खुदावंद लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड जीसस खुदावंद पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद आप इस ग्रुप ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ लॉर्ड जीसस खुदावंद, जो भी कोई बीमार है खुदावंद, जो भी कोई खुदावंद किसी परेशानी च है खुदावंद, जो सारियां बीमारियां खुदावंद, सारियां परेशानियां खुदावंद ते यीशु मसीह ਦੇ नाम 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ लॉर्ड हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावंद हर तरह ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ लॉर्ड जीसस ਤੇ यीशु मसीह नाम 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावंद पिता परमेश्वर तू महान खुदा लॉर्ड जीसस हालेलुया। लॉर्ड जीसस खुदावंद तू हर एक दी प्रॉब्लम ਨੂੰ, हर एक दी रिक्वेस्ट ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ खुदावंद, ਜਿਹਨੇ खुदावंद ਨਹੀਂ ਵੀ रिक्वेस्ट ਦਿੱਤੀ खुदा पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस खुदावंद तू दिਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ खुदा लॉर्ड जीसस हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावंद तू हर एक ਨੂੰ खुदावंद संभाल लॉर्ड जीसस, हर एक ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ लॉर्ड जीसस हालेलुया। ओ खुदा पिता परमेश्वर हर एक ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ खुदावंद तू ਬਾਹਰ ਕੱਢ लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड जीसस खुदावंद तू ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਿਆ ਕਰ ਦੇ खुदावंद, तू ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇ लॉर्ड जीसस हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस खुदा पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ खुदावंद, ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ लॉर्ड हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस खुदा पिता परमेश्वर खुदावंद ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਿਆ ਕਰ खुदावंद हालेलुया। खुदावंद ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਗੋਂ खुदावंद ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ लॉर्ड जीसस, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਹੈ लॉर्ड जीसस हालेलुया। लॉर्ड यस लॉर्ड हालेलुया। प्रेज लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू Yes Lord लॉर्ड खुदा पिता परमेश्वर निवास की खुदा पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावंद हर एक ਨੂੰ तो आशीष भर के देना खुदावंद लॉर्ड जीसस तूने संभाल के रख खुदावंद पिता परमेश्वर, वो हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहना लॉर्ड जीसस हालेलुया। कभी भी शैतान खुदावंद किसी भी तरह भटका ना सके लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड जीसस खुदा पिता परमेश्वर ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ लॉर्ड जीसस, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ लॉर्ड जीसस। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲਚ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ खुदावंद यीशु मसीह नाम 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस खुदा पिता परमेश्वर
ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੇ ਦੁਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया जीसस हालेलुया। हम हम्म, शीना के उसके भांजे के लिए प्रे करेंगे। हालेलुया जीसस। और शिक्रिया कात्रिया रे संदरा संदरा शिक्रिया कोत्रिया रे बेरे बेरे बेस और शेरे बेरे 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 संदरा 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 शेरिया बेरे संदरा। हालेलुया। हम इज़राइल को यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा तेरे बेटे को सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। खुदा तेरे बेटे के लिए खुदा शिफा का कलाम करते हैं यीशु के नाम से। जो भी इसका बुखार है, गला खराब है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से उसके बदन से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा हम सब मिलकर खुदा तेरे हजूरी में तेरे बेटे को लेके आते हैं यीशु के नाम से। अपने शफा बख्श हाथ को बढ़ा यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा तो उसको मुकम्मल शिफा दे, मुकम्मल खुदा जो भी बीमारी है किसी भी वजह से है यीशु के नाम से। तेरा बेटा खुदा अभी इसी वक्त खुदा शिफा पाए और खुदा तेरे नाम को आमीन इज्जत आमीन। और यीशु जलाल के मिले खुदा यीशु यीशु के के नाम नाम से। जो भी गला खराब है खुदा किसी भी तरह से जुकाम है, कुछ भी है खुदा यीशु के नाम से। खुदा तू अपने बेटे को in छू the name of और yes खुदा मुकम्मल शिफा दे, मुकम्मल खुदा आमीन। अपने बेटे को खुदा उठा खड़ा कर यीशु के Yes नाम Lord. से। खुदा तेरे नाम Yes को इज्जत और जलाल मिले yes my यीशु के Lord. नाम Yes से। खुदा इस दुआ yes को Lord. हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। Praise the Lord. अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। मैंने शुरू में जब उस सोनिया प्रेयर कर रही थी तो बड़ी ही जैसे एक समंदर को देखा है, ऐसे तूफान जो है आया हुआ है और एक कश्ती को मैंने देखा है जो बड़ी जैसे होता है ना, वो डूबने वाली होती है, हचकोले खा रही होती है, हम देखते हैं। तो इस तरह के मैंने देखा है कि बड़े ही अ, कश्ती है जैसे, तो किसी की ज़िंदगी में बड़े ही जैसे कह लें ऐसे तूफ़ान हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी में चल रही हैं। तो लेकिन साथ ही मैंने देखा है उसके बाद के एक जिस तरह एक तंदूर होता है, सबको शायद पता होगा, है ना? और ऊपर आग लग रही है और नीचे आपको पता है एक साइड से वो लकड़ियाँ वगैरह उधर से डाली जाती हैं। तो इस तरह मैंने देखा है कि वो जैसे ऐसे बुझा सा हुआ है वो तंदूर जो है, लेकिन जब उसके अंदर वो लकड़ियाँ और डाली जा रही हैं और वो आग जो है जो बुझी हुई है वो जलना शुरू हो गई है। तो कहीं किसी की भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी या आज के कलाम के हिसाब से मेरा ख्याल है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से एरिये थे
जहाँ पे उसने बहुत से खुदा उनके साथ वादे किए हुए थे, बहुत सी ऐसी लेकिन उनको वो पूरा नहीं कर सका और पीछे हट गया खुदा उनसे। लेकिन आज के कलाम से, आज की इस आवाज़ से जो खुदावंद उसके साथ बात कर रहा था, तो मेरा ईमान है उसने तौबा की है और उसने, और वो जो आग है दोबारा से उस तंदूर में जलना शुरू हो गई है। तो खुदावंद ने किसी को, यानी इसका अगर हम कि खुदावंद ने बहाल किया है, आज़ाद किया है और शायद इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में जैसे कह लें कि तूफ़ान जो थे वो आ रहे थे और उसकी कश्ती जो थी वो डोले खा रही थी। तो खुदावंद ने आज उसकी ज़िंदगी में वो अगर नहीं किया किसी ने तो वो माफ़ी माँगे, तौबा करे कि खुदावंद मैंने ये तेरे साथ वादे किए थे, ये किया था लेकिन मैं उस तरह से चल नहीं सकी या सका। तो खुदावंद ने आज उसको आज़ाद किया है, बहाल किया है और खुदा उनसे माफ़ी माँगे। और शीना के उसके भांजे के लिए खुदावंद कि एक तो मैंने देखा है कि जैसे एक बेड है और उसके दोनों तरफ ऊपर मैंने देखा एक छत बनी हुई है और दोनों तरफ से जो पानी है वो गिर रहा है और साथ ही खुदावंद की जो कह लें खुदावंद की पाखरू की आवाज़ जो है वो मुझे आई है कि जो माँ है वो अपने बच्चे के लिए रोज़ा रखे और दुआ में ठहरे। शुक्रगुज़ारी के लिए खुदावंद ने उसको शिफ़ा जो है वो दे दी है। आप जो फ्रांसिस्का है वो रोज़ा रखे और अपने बेटे के लिए और उसके लिए शुक्रगुज़ारी करे। खुदावंद ने उसको शिफ़ा जो है दे दी है। अ, मैं नहीं जानती क्यों, शायद उसने कहीं पे बोला हो लेकिन खुदावंद ने मुझे इस तरह कलाम किया है कि वो रोज़ा रखे और शुक्रगुज़ारी करे। यानी उसकी बीमारी के लिए नहीं, खुदावंद ने उसको शिफ़ा दे दी है, शुक्रगुज़ारी के लिए। तो खुदावंद आपको बरकत दे। अगर किसी और के साथ भी खुदावंद ने कोई कलाम किया है या कुछ देखा है, रोया देखी है, तो वो शेयर कर सकते हैं। जी, किसी ने कुछ कहना है? मैंने कहना है, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको कॉल की प्रेयर स्टार्ट होने से पहले कि मैं मतलब प्रेयर में नहीं आ सकती क्योंकि हमारा 5 दिन से वाकई 5 दिन से हमारा पानी नहीं था आ रहा। कभी काके माँ के घर, कभी अम्मी के घर और 2 दिन से यहाँ से पानी भर रही थी ना, तो आपको पता है ऊपर 3rd पोर्शन पे हो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि कर रहे थे हम, पानी भर रहे थे। तो जब मैंने आपको मना किया कि आज मैं नहीं करूँगी प्रिज़ाइड, तो आप किसी और को बोल दें। तो उस वक़्त ना मैंने दिल में दुआ की और मैंने खुदा उनको कहा, मैंने कहा कल मेरा मैसेज उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा इसका मतलब कि खुदावंद आपकी मर्ज़ी नहीं है कि कल मैं मैसेज भी दूँ और आज की भी मतलब आपकी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं मतलब ये करती। तो बस ये कह के टूटे से दिल से फिर वो पानी भरने लग गई मैं, और अभी मैंने पानी की 1 बाल्टी ही भरी और 2-3 बोतलें भरी। तो नीचे से फिर उम्मीद की कॉल आ गई कि मैंने मोटर चलाई है तो पानी आ गया है तो पानी भर लो। तो मैंने शुक्र हालेलुया! किया खुदावंद का कि आज भी कोई उम्मीद नहीं थी, हुँ, बिल्कुल भी हुँ। नहीं थी। बस अचानक से मोटर चलाई है, किसी ने भी पूरे एरिया में, मोहल्ले में किसी ने मोटर नहीं थी चलाई। सारे चला-चला के ना थक गए थे, 7:30 तक, पौने 8 तक पानी नहीं आया। उम्मीद हुँ, नीचे गए कि मैं जाके अम्मी की तरफ नहा लेता हूँ। तो वो उधर जाने लगे, उन्होंने वैसे ही मोटर चलाई, तो एकदम से पानी आ गया। उसके बाद सबने चलाई तो सबका पानी आ गया। तो मैंने खुदा हालेलुया! का शुक्र किया। मैंने कहा कि अभी शेयर ही किया था उनके साथ अपना हुँ, प्रॉब्लम, तो ये कि खुदावंद का मर्ज़ी थी कि आज पानी आ जाता और कल मैं मतलब कलाम प्रेज़ सुना गॉड, सकती। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू। देखा हम जो खुदावंद से माँगते हैं दिल से तो खुदावंद वो ज़रूर कबूल करता है। अगर किसी वजह से देर हो जाती है, तो उसके पीछे भी खुदावंद का कोई मकसद होता है ना? इसलिए टूटा दिल ना करें। गॉड ब्लेस यू वफ़ा। जी, और किसी ने कुछ अगर शेयर करना है तो कर सकता है। जी, सनिया या कुछ रविंदर, शीना, सोनिया। ओके जी, चलें ठीक है फिर।
God bless you.